तो जी आवाज आ रही है सबको? ऑनलाइन भी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही सर। क्लियर जी आवाज? सर, आवाज आ रही है सर। या पंखों का शोर तो नहीं आ रहा? सर थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्शन है। पंखों का शोर तो नहीं आ रहा सर, आवाज थोड़ी सी कट रही है। अच्छा चले, नो इश्यूज। आई थिंक इट विल बी ओके इन कपल ऑफ मिनट्स। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन शायद पिछले वाले दो बंद कर दे पंखे, एक आध काफी है शायद। देख ले जो अननेसेसरी इनको आप स्विच ऑफ कर।
सर अब बेहतर है सिग्नल सर। अच्छा जी, okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is our second class or second week in which we are now continuing towards the subject. The class of the first week was conducted and I uploaded the required content in form of video lecture as well on YouTube. The links were shared and I expect that everybody has seen it and shared a summary with me. सो स्टिल अगर किसी ने नहीं देखा तो लेक्चर को देखे। लेक्चर में जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें थोड़ा सा कंटेंट मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी रिकॉर्ड किया है बाद में, क्लास के बाद भी, तो आप जो क्लास में थे उनको भी देखना चाहिए। सही। सो वंस आई अपलोड द लेक्चर on YouTube, it generally will contain little bit more content. So even if you are in the class on campus, you attend the class. After going back, once the links are shared, you must scroll through them again, so that if anything which you have not covered or missed during the lecture, you can see that, make notes. Once you come back for the next class, then do get out your notes. And if you have any problem on any point, any issue, ask the questions. Make it a habit, right? This semester would be a little faster because we have 6 hours class of in 1 week. So probably if we do not ponder on certain things in details during the class, I gave you some assignments, some tasking during the class, and I feel that there is something which has to be covered in my video lecture. I'll record it later as well. So I can share it, I can make it, and accordingly, that is supposed to be covered by you once you go back. So that is my request for to everybody online. जो डील स्टूडेंट्स हैं वो तो ऐसे ही कर रहे होंगे, बट जो क्लास वाले हैं उनको भी ऐसे करना चाहिए। और क्लास के अंदर हम रेगुलर जूम सेशन पे होंगे और इसके अंदर एक हाइब्रिड मोड पे वी विल कंडक्ट द क्लास। Anybody online having any issue, any problem in the previous lecture or in the current lecture, he or she can also ask questions during the lectures, right? So keeping the leverage now and expecting that everybody has seen the previous lectures. Any question right now before we start the regular content from the previous class? पहले let me ask the online participants that if you have anything to ask, तो बराए मेहरबानी आप पहले पूछें और अगर हम उसको पहले रिजॉल्व करें और फिर आगे चलें। जी ऑनलाइन लोगों में आई कैन सी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आइजा जमील, आपने जी कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई प्रॉब्लम? सर सर नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस। आपने लेक्चर देखा है जी? सर नहीं देखा सर, आई विल तो सी इतनी ऑन दिस वीकेंड। कोई नहीं है ना, अब सर लेक्चर क्योंकि देखिए इसमें अगेन आपने नहीं देखा, आई होप अब यू विल सी इट, बट ये साथ साथ चलना पड़ेगा आपको। इफ यू पेंड इट फॉर द लास्ट वीक तो ये चीजें कवर नहीं होंगी। मैं एक दफा दोबारा हाईलाइट कर दूं कि इस सब्जेक्ट की पासिंग की रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी स्टूडेंट हैज टू प्रेजेंट हिज और हर thesis proposal document in written form for checking and in presentation form to the class, to the instructor. So उसके लिए हम number of presentations भी लेंगे and I'll getting your assignments as well. I'll be looking into those कि आप क्या कर रहे हो। और exams are not that important. Let me highlight this. Midterm exam, end-term exam based on the lecture content covered is not very, very important. It is just for the sake of exam. But for me, maximum weightage is the interaction you do with me. Your queries, they will indicate how interest you are taking, how interest you are taking. And secondly, your presentations, your covered content or your presented content, because it will indicate कि आप again कितनी पेन ले रहे हैं. So it is
ये एक Sir, I spoon, will be following the lectures from next. ये स्पून फेड कोर्स नहीं है. इट इज मोर ऑफ योर इनपुट एंड माई करेक्शन. सो ये इसी तरीके से हम चलाने की कोशिश करेंगे. तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि वो लेक्चर्स को लाजमी देखें और साथ साथ देखते रहें. फायदा आपको ये होगा कि अगर आप थीसिस लेना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट के बाद आपके लिए आपकी थीसिस फेज 1 जो है वो रेडी होगा और आप फेज 2 पे काम कर सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस भी किया है कि थीसिस के कितने फेजेस हैं और किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग होती है और उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है. तो दैट इज़ द पॉइंट के इसलिए मैंने आई थॉट इम्पोर्टेंट कि इसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको हाईलाइट कर दूं. तो ठीक है आयशा, अगर नहीं देखा आपने तो अभी आप ज़रूर देखिएगा. आज भी कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, उनको भी इनकॉर्पोरेट करके नेक्स्ट क्लास में आप इनकी समरी जो है वो दें. हर स्टूडेंट ने मुझे एक समरी देनी है, चाहे वो ऑन कैंपस स्टूडेंट है चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट. सो आई वुड बी collecting all these summaries and those Right. would be given some weightage in the overall grading of the subject, whatever you submit to me. ठीक है. तो गौर से देखें, नोट्स बनाएं साथ साथ, क्योंकि यही इसी में से एग्जाम भी आएगा. इसी में से आपकी जो है ना वो कुछ चीज़ें जो आपने प्रेजेंटेशन वाली या राइटिंग वाली करनी है वो हम कवर करेंगे. ओके जी. सो अली हबीब, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. सर मैंने वो आप करेंगे और सर आप अली हबीब, आपकी आवाज़ कट गई है. बताया था कि वही डिस्कनेक्ट हो गए हैं. सॉरी, अभी मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया. आई एम श्योर अभी आपको आवाज़ ठीक आएगी और आपकी आवाज़ मुझे ठीक आएगी. सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. सर जी वालेकुम अस्सलाम सर जी. आवाज आ रही? सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि सर आपसे मैंने कुछ क्यूरीज तो सर व्हाट्सएप पे भी कंफर्म की थी सर. सर मेरा अभी सवाल ये है सर कि आपने बताया सर TH1 जो है ना सर हमारा एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमें ये फायदा है कि सर हमारा TH1 एक किस्म का तैयार हो जाएगा सर. मतलब मेथोडोलॉजी के जो मिड फेज है जिसमें हम सजेस्ट करेंगे कि ये गैप्स हैं और उन गैप्स के ऊपर हमारे प्रपोज सॉल्यूशन ये हैं सर. यहाँ तक हम जो है ना उसको मतलब कि हमारा काम तैयार हो जाएगा सर. सर पूछना ये चाह रहा था कि अभी अगर सर अभी जैसे हम DL स्टूडेंट हैं सर, हमारे हमारे पास तो कोई नंबर भी नहीं है इंस्ट्रक्टर्स के. और सर अभी तक कोई इंस्ट्रक्टर उस तरह मिल भी नहीं सके सर. और काफ़ी इंस्ट्रक्टर ऐसे हैं सर जिनसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन सर उन्होंने कभी मोबाइल नंबर अपने शेयर नहीं किए और सर वो उस तरह रिस्पॉन्स भी हमें नहीं मिलता सर. अब हम सर उनसे किस तरीके से कांटेक्ट करें या हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेरी फील्ड है सर उसमें से अगर हमारे इंस्ट्रक्टर हैं हम उनसे अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या इस तरह की कोई चीज़, तो सर ये हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए TH1 के लिए, जो एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आप कहते हैं कि हमें वो TH1 की एक किस्म की तैयारी होगी. तो सर इंस्ट्रक्टर से किस तरीके से कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं और सर क्या कोई यूनिवर्सिटी असाइन करेगी हमें या इंस्ट्रक्टर या क्या होगा सर, ये करनी अगर आप बताएं सर. जी ठीक हो गया अली. अच्छा सवाल है इसका. देखें, जवाब ये है कि सुपरवाइजर को ढूंढना, उसको राजी करना, ये थीसिस की रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा है. आपको दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं, आपको हमेशा थीसिस के सुपरवाइजर की सिलेक्शन, उसको पकड़ना, उसको राजी करवाने में मसला आता है. तो ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने इसमें पढ़ना है, आपने उसको अप्रोच करना है. उस अप्रोच करने के लिए अब ये आपकी एक आई वुड से कि एक स्टाइल ऑफ लिंकेज विद दी विद एनी अदर इंडिविजुअल है. ह्यूमन बीइंग है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, आपका टीचर भी है. कुछ टीचर आपको अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ अच्छे नहीं करेंगे. कभी आपको आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, कभी नहीं करेगी. तो ये सारी चीज़ें आपने सोचते हुए आपने अटेम्प्ट करना है. जिन टीचर्स ने आपसे पढ़ा है वो सारे के सारे आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर्स बन सकते हैं. उनके नंबर्स आपको दिए जा सकते हैं. आपने पहले अपना एक इनिशियल होमवर्क करना है कि मैं किसके साथ सूट कर सकता हूँ. आप उनसे फिजिकली भी मिल सकते हैं. दे आर ऑन द कैंपस, दे विजिट द कैंपस, दे हैव देयर ओन प्लेसेस. आप उनसे आके उनके एड्रेसेस में मिल भी सकते हैं. एक तरीका ये है. अगर वो आपको वर्चुअली या किसी फोन मीडिया के ऊपर कांटेक्ट नहीं बन देना चाह रहे या नहीं मिलना चाह रहे, तो अब ये आपकी भाग दौड़ भी इसमें शामिल है. थीसिस स्टार्ट करना आसान काम नहीं है. इट इज़ थोड़ी सी पेन मांगता है. तो ये थोड़ी पेन आपको लेनी पड़ेगी, इतना आराम से नहीं होंगी चीज़ें.
भाग दौड़ करनी पड़ेगी, मिलना जुलना पड़ेगा। कभी आप फिजिकली मिलेंगे, कोई फ़ोन पे जवाब देगा, कोई नहीं देगा, कभी आप ऑनलाइन इंटरेक्ट करेंगे, तो ये तो आपने करना है। अब आपके एंड पे काम क्या होना चाहिए कि एक तो पहले इसके लिए आप विलिंग हो गए जी मुझे इसमें मसला तो आएगा। जब आपके जहन में हो ना यार इसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं ज़िंदगी में कि यार मसले तो आने हैं तो मुझे अब थोड़ी एफर्ट करनी है। अब उसके लिए अब आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करें। आप आपने जिन जिन से पढ़ा है आप देखें कि क्या उनके साथ आपके एरियाज मैच कर रहे हैं, जो आपने एरिया या टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, क्या वो उस एरिया में आपको उनका कोई काम है, उनके कोई पेपर्स हैं, या वो खुद कोई रिसर्च ऐसी कर रहे हैं। नंबर वन, आपको फिर जिनके नंबर चाहिए, जिनके कॉन्टैक्ट चाहिए, वो आपको पीजी कोऑर्डिनेटर देगा। आप उन्हें रिक्वेस्ट करें सर मुझे डॉक्टर आमिर बकाई का कॉन्टैक्ट दें, वो आपको दे देगा। वो आपसे रिक्वेस्ट करें सर मुझे डॉक्टर यासिर का कॉन्टैक्ट चाहिए, वो आपको देगा। आपने कहा सर मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे डॉक्टर साजिद का कॉन्टैक्ट चाहिए, जिस इंस्ट्रक्टर का आप नाम लेंगे वो आपको कॉन्टैक्ट देंगे। अब आपकी दौड़ है कि आपने उनको कैसे राजी करना है। इसमें आपको असिस्ट डेफिनेटली भी कोई भी नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी एक इंटरेक्शन है, आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि सुपरवाइजर राजी होते हैं स्टूडेंट की इंटरेस्ट को देखते हुए, या नाराजी होते हैं कि स्टूडेंट जो अजीब अजीब जब बातें करता है वो कहते हैं यार ये कहाँ से आ गया, टाइम जाया करेगा मेरा। तो अपने आप को कंपोज्ड फॉर्म में लेके जाएं, अपने टॉपिक को रिफाइन करें, अपने रिसर्च टॉपिक्स को, रिसर्च पेपर्स को शॉर्टलिस्ट करें। रिसेप्टिव एंड पे हो, सुनने के मूड में हो, दोनों कान खुले रखें। एक मुंह दिया अल्लाह ने, दो कान दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली आधी बात करें, पूरी बात सुने। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको कोई अच्छे सुपरवाइजर जो आपके साथ राजी हो जाएंगे। से अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि जी मैं बड़ा बेबस हूँ, कोई भी नहीं मुझे जवाब दे रहा, तो फिर आप अपना टॉपिक सिलेक्ट मोहसिन साहब को दीजिएगा। आपको अकॉर्डिंगली मोहसिन साहब देखते हुए कि कौन सा सुपरवाइजर सूट करता है आपके एरिया को, वो उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आपको उस एरिया में वो सुपरवाइज करें। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन एक इससे पहले आपकी भाग दौड़ हो। उसके बाद एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप समझते हैं कि जी मैंने एक एक डॉक्टर साहब हैं जो मैं इसे मुल्तान के अंदर हूँ और वहाँ पे उस एरिया में वो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, तो वो आपको सुपरवाइज कर सकते हैं। आप उनकी सीवी शेयर कर लेंगे, ठीक है, वो कहीं पे भी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, बट टीचिंग फैकल्टी में होने चाहिए। आप उनकी सीवी शेयर कर लेंगे, वो आपके सुपरवाइजर्स, उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी से एक पेपर वर्क के लिए आपको सुपरवाइजर मिल जाएगा, बट काम आप उन साहब के साथ कर सकते हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया, प्रोवाइडेड ही इज़ अ फैकल्टी मेंबर। अली, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? सर डन हो गया सर। बस एक लास्टली एक और क्यूरी थी सर जो आपसे पूछनी थी सर, जो फिलहाल शायद से रेलेवेंट ना हो, लेकिन सर आपने सर जो उसमें लेक्चर में 1 में कवर किया है सर, सर उससे रिलेटेड है सर। सर आपने उसमें बताया था सर जो TH2 है सर, आपने कहा था सर उसमें एक्सटर्नल सुपरवाइजर जो है ना 40% नंबर रखते होंगे। अब सर TH2 के लिए सर आपने कहा था ये डिपार्टमेंट लेवल होगी, तो सर डिपार्टमेंट लेवल में एक्सटर्नल, ये थोड़ा सा सर टी एच टू कंफ्यूजन टी सी एच है टू क्योंकि टी एच टू में मैंने नहीं कहा ये कि डिपार्टमेंट लेवल होती है। TH2 यूनिवर्सिटी लेवल होता है। TH2 इज द थीसिस डिफेंस। TH1 होता है डिपार्टमेंट लेवल पे, ECP सर होती है, फिर आगे सर GSC सर होती है, GSRMC होती है। आप जरा एक दफा दोबारा देखिएगा। TH2 इज जी द सर। यूनिवर्सिटी लेवल डिफेंस, जिसमें एक्सटर्नल जो है यूनिवर्सिटी के बाहर से आते हैं और वो 40% वेटेज उनके पास होती है। सर वो जो आप कह रहे थे कि सर मैं थोड़ा सा शायद उसको मिक्स कर रहा हूँ सर। आप उसमें जो जिक्र कर रहे थे कि जो जिसमें मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हैं ना, वो यूनिवर्सिटी का अपना कंसर्न होगा। अब सर वो यूनिवर्सिटी कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी कहना चाह रहे थे, या मैं थोड़ा उसमें से मिक्स कर रहा हूँ शायद, कि सर कैंपस अभी के हम अंदर इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद वाले हम जैसे आपका प्लान करेंगे डिफेंस, और एक्सटर्नल बाहर से बुलाएंगे, सादे लफ्जों में। ठीक हो गया। अच्छा डन हो गया सर, वो मतलब आके वो मार्किंग करेंगे सर इसमें 40%। जी। सर डन हो गया सर, जजाकल्ला सर, बिल्कुल ठीक है बस। डन सर। ओके जी। और अली के अलावा एनीबडी एल्स ऑनलाइन कौन है आपके इस वक्त से? आतिफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं और थीसिस जिन्होंने करना है उनके लिए तो सुपरवाइजर आपने बता दिया है, लेकिन जिन्होंने ये सिर्फ एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पे लिया हुआ है और आगे उन्होंने रिसर्च नहीं करनी, तो क्या वो भी उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो कोई सुपरवाइजर देखें सर? हाँ आतिफ, अच्छा सवाल है जी। आपके सवाल का जवाब है यस। आपने उस प्रोसेस से गुजरना है ताकि आपको भी उन तकलीफों का अंदाजा हो जिनको बाकी सब गुजर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कल को आप तीसरी स्टेज पे जाएं किसी और स्टेज के ऊपर, मे बी यू डिसाइड कि मैं PhD करना चाहता हूँ या से दोबारा MS करना चाहता हूँ, तो आपको वो प्रोसेस का पता हो। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको सुपरवाइजर सेलेक्ट करना पड़ेगा।
और उनको बताने की सर जरूरत नहीं है कि मैं थीसिस नहीं करना चाह रहा, बेशक आप बाद में ना करें, बट ये कि अभी सर यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, यू हैव टू प्रेजेंट सर दैट प्रपोजल डॉक्यूमेंट। सो उस पर गाइडेंस के सर लिए आपके पास कोई सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद अब्बास। सर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, सो फar सो गुड सर। आपने लेक्चर देख ली है अब्बास? सर मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है मैंने सर, मैं लेक्चर्स ले लूंगा सर किसी से। अच्छा जी, ग्रुप के ऊपर ही लेक्चर्स के लिंक्स जो है वो उसकी बायो बायो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में पड़े हुए हैं, आप लिंक्स देख सकते हैं वहाँ, सर सर राइट सर। ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़े हुए। सर सर जी नेक्स्ट इज शकीब साहब। जी शकीब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे अभी मैं रिसर्च टॉपिक्स वो टॉपिक्स अपने देख रहा था, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि क्या उठाया जाए। सर तो मेरा यही पूछना है कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया जाए सर, जो जिसके अंदर नोवेल्टी भी हो, और उसको उसके लिए मतलब ये कि ज़ाहिर है डाटा तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये है कि कुछ मतलब समझ भी आए सर, रेलिवेंट हो, और उसके अंदर कोई यूनिकनेस हो कि हाँ हमें सुपरवाइजर उसको उठा ले, वो चीज जिस पे आगे पीएचडी के लिए अगर करना चाहें तो वो उसको भी वो मतलब सपोर्ट करे। ऐसा टॉपिक सर सिलेक्शन के लिए कोई बताइए कि कैसे सेलेक्ट किया जाए। अच्छा शकीब, देखो ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है जी। देखें, टॉपिक जो है ना वो एक ख्वाब में नहीं आता कभी भी कि मैं सुबह उठूंगा मुझे याद आएगा यार ये सर टॉपिक सर नॉवल है। इट इज अ इटरेटिव प्रोसेस। आप मैंने आपको लास्ट क्लास, आपने लेक्चर देखा था लास्ट? नहीं सर, अभी मैंने नहीं देखा लेक्चर, मैंने अभी ज्वाइन तो सर फिर आप कैसे जवाब, किया ये है लास्ट वीक इस तो। सवाल का जवाब जो है ना पहले इस लेक्चर में है। अब आपने देखा ठीक है नहीं, सर। फिर आप ऐसे ही सवाल करेंगे। ठीक है सर, वो मैं सर अभी सारे लेक्चर जो आपके हुए हैं वो ऑनलाइन अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी आई है हाँ इस वीकेंड से, तो जी, वो फिर मैं देखूंगा सर सारे काइंडली देख टॉपिक्स लें, और फिर आप इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में दोबारा अगर आपके जवाब ना हो तो आप पूछिएगा फिर दोबारा बस। बट ये याद रखें कि ठीक है टॉपिक सर। सिलेक्शन इज अ इटरेटिव प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। इट इज नॉट लाइक दिस कि मैं आपको आज बताऊं और आप शुरू हो जाएं या कोई और आपको बताए। ये थोड़ा टाइम लेती है चीजें, सर इसलिए थीसिस में आपको 2 साल का वक्त दिया जाता है कि आप सोचें समझें और उसके बाद डिसाइड करें, और उसमें किससे एडवाइस लेनी है वो हमने डिस्कशन डिटेल में की है लास्ट लेक्चर में। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हाँ है सर, ये थैंक यू। ये चूंकि ना स्पून फेड चीज नहीं है, ये अगेन एक ये समझें कि एक बिल्डिंग के अंदर आपने एंटर होना है और दूसरी तरफ से बाहर निकलना है और रास्ता क्लोज है। तो अब आपकी जिंदगी मौत का मसला हो और आपसे कहा जाए कि इस बिल्डिंग को क्रॉस करना है, तो फिर आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जरूर ढूंढ लेंगे सर ठीक है, तो इंशाल्लाह। ट्रेस पासिंग जो है ना इसमें आपने सीखनी है। ट्रेस पासिंग कैसे सीखनी है, इसी का नाम थीसिस करना है। कोई आपको चम्मच में डाल के नहीं देगा कि ये टॉपिक है और कर लें आप। जी जी। ठीक है, ठीक तो है जरा सर, इस पे इस थैंक यू। तरीके से गौर कीजिएगा, लेक्चर भी देखिएगा और साथ साथ चलते रहे। अभी हम इसमें ये बातें साथ साथ करते भी रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, शकीब हो गए जी। नेक्स्ट इज आई कैन सी शहला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ऑनलाइन वीडियोस का अभी तक एक्सेस नहीं मिला, जैसे ही जब वो मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह मैं गो थ्रू कर लूंगी वीडियोस को सर। आपके ख्याल में एक्सेस कैसे मिलेगा? सर मैंने अप्रोच किया था सर कामरान को, लेकिन उन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया। नहीं इट्स बीन कामरान 2 नहीं, डेज। आप ग्रुप पे नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे? सर ग्रुप में हूँ, ग्रुप के अंदर अगर आप लेकिन सर डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये लेक्चर सारे उनके लिंक्स पड़े हुए हैं। राइट सर मैं गो थ्रू कर लूंगी सर। हाँ तो आपने पूछा भी नहीं है ग्रुप पे, आप मैसेज करके पूछती हैं कि किधर है लेक्चर्स तो आपको पता चल जाते। जी सर। तो काइंडली उनको देखिए, और मे बी अब दोबारा नेक्स्ट वीक, अभी इस वीक में भी लेक्चर अपलोड होंगे, उनको भी देखिएगा। इस तरह मैंने कहा कि एक्स्ट्रा कंटेंट में अपलोड करूंगा तो उसको भी ज़रूर देखें। जी सर इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुनीब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरी पहला लेक्चर है सर, मैं वो सुन रहा हूँ सर, जो पेज है वो मैं देख लूंगा सर, नोट कर लूंगा, वहाँ से खुद में ऐड हूँ सर। मुझे एक चीज़ बता दें सर, रिसर्च में और आर्टिकल में क्या फ़र्क है सर? रिसर्च और आर्टिकल में क्या फ़र्क है? लेक्चर आपने देखा नहीं है तो अभी नहीं क्या सर, नहीं इसका देखा जवाब मैं। दिया जाए आपको? ये वैसे आपके सुन रहा ख्याल था में कि क्या फ़र्क होता है रिसर्च में और आर्टिकल में? आप अगर से माशाल्लाह आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए मुनीब? मैंने आपसे 3 पढ़े हैं सर। 3 पढ़े हैं। 3 पढ़ने के बाद तो ये सब्जेक्ट आपको लेना ही नहीं चाहिए, आपने अभी क्यों लिया है सब्जेक्ट?
नहीं वो तो सब सॉरी सर 6 पढ़ चुका हूँ सर। तो अभी अच्छा 3 का ये 7 सब्जेक्ट है। मैं याद तो भी नहीं। ये मैं कह रहा हूँ रिसर्च में ओनली ड्यूरेशन एमएस में बंदा करता है, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है फिर बंदा आर्टिकल वो करता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल बंदा बाज का देते हैं, कोई लोग नहीं देते ना, वो तो बंदा खुद चॉइस करता है ना। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दें मुझे। अगर मतलब हम रिसर्च नहीं करते, हम बाद में हम आर्टिकल वो कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं सर। आपका बैकग्राउंड क्या है? पहले क्या आपने किया हुआ है अंडरग्रेड में? सर बीबीए किया हुआ था बीबीए किया हुआ है, कहाँ से? सर, ये आपका बात है। अहमदाबाद कॉमसेट से? नहीं सर, ये आज़ाद यूनिवर्सिटी से। हज़ारा यूनिवर्सिटी से। और अभी आपने मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे हो? नहीं सर, मैनेजमेंट साइंसेज में कर रहा हूँ। मैनेजमेंट साइंसेज में। अच्छा, आपने रिसर्च पेपर्स किसी सब्जेक्ट में पढ़े हैं? नहीं सर, मेरे नहीं पढ़े सर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने अभी मास्टर्स में पढ़ लिए हैं? सर पहले सेमेस्टर में सर एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, और मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ा था, और ऑपरेशन एडवांस एंड ऑपरेशन में पढ़ा था। और दूसरे में स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है, और तीसरे में ये दूसरा अमर साहब का था, सब्जेक्ट था, वो पढ़ा है। तो एक और मैनेजमेंट एंड एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज में किया था सर। किसी इंस्ट्रक्टर ने आपको कोई रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए नहीं दिया? नहीं सर, वैसे किसी ने ऊपर नहीं किया था। वैसे केस स्टडी देते हैं सर, वो केस स्टडी पढ़ते रहे हैं। केस स्टडी में कभी उन्होंने कोई रिसर्च पेपर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कोई बात नहीं की है कि रिसर्च पेपर कोई चीज़ होती है? क्योंकि आप डेफिनेशंस जो दे रहे हो ना वो ठीक नहीं दे रहे कि आर्टिकल, और आपको आर्टिकल क्या होता है आप अभी तक क्लियर ही नहीं हो आर्टिकल के बारे में। व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिकल? आप आर्टिकल का लफ्ज यूज कर रहे हो, क्या ये क्या चीज़ होती है? मैं सर यही पूछूं, मैंने सुना रहा हूँ ना, मैंने कहा सर से क्वेश्चन करके पूछ लूंगा मैं। वहाँ लोग टीचर होते हैं, वो अच्छा आर्टिकल। देखिए, होता ये है कि आप जो है ना रिसर्च पेपर्स लिखते हैं अपने किसी काम को जी कंप्लीट करने के बाद। जी दुनिया जी भर में एक काम होता है कि आपने कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है? जी सर। जब उस प्रॉब्लम को, आपको एक प्रॉब्लम नजर आई, आपने इर्द गिर्द अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स में, ठीक है, टू बी मोर जनरल नेचर, आपने कहा जी मेरी जी सर। एक्सपर्टीज है, मेरे स्किल्स हैं और मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं इसको हल करता हूँ। और आपने जी उसको सर। हल किया बेस्ड ऑन प्रीवियस सॉल्यूशंस ऑन द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि हर मसले पे दोनों लोगों ने सॉल्यूशंस दिए हुए। तो आप क्या करते हैं जी जब किसी मसले को हल करने जाते हैं, तो पहले आप पुराने वाले मसले के सॉल्यूशंस या पुराने हल देखते हैं उसी तरह के सॉल्यूशंस के। आपने गाड़ी ठीक करनी हो तो आप पहले पूछते हैं ना अपने मैकेनिक से, यार कि ये मसला आ रहा है मुझे बताओ, वो आपको अपने एक्सपीरियंस पे बताता है यार पहले सर ये है ये है ये है, तो ये चीज़ खराब हो गई, और फिर आप उस तरह से अपने मसले को हल कर लेते हैं। हर मसला ऐसे हल करते हैं ना, पहले हम जी प्रीवियस सर। सॉल्यूशंस को देखते हैं, उसकी बेस पे हम फिर नए मसले को हल कर लेते हैं या उसी तरह के मसले को हल कर लेते हैं। जब आप हल कर लेते हैं तो आप कहते हो कि जी मैंने हल कर लिया, लेट मी राइट इट डाउन फॉर एनी अदर पर्सन टू ऑब्जर्व और रीड इट इन फ्यूचर। इसका नाम होता है रिसर्च ठीक पेपर। ठीक हो गया सर। आप रिसर्च पेपर लिखते हैं और रिसर्च पेपर को आप सबमिट करते हैं किसी एक अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर। और वो अप्रोप्रिएट फोरम जो है वो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको टारगेट दिया था कि आप जरा पढ़ के आएंगे, देख के आएंगे कि वो कौन कौन से फोरम्स हो सकते हैं जिसमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो लेट मी हम उसको डिस्कस आज कर लेते हैं। बट आपके अभी तक के सवाल का जवाब ये है कि आर्टिकल एक एक गलत लफ्ज है जो आप यूज कर रहे हैं। रिसर्च की डोमेन में हम इसको रिसर्च पेपर कहते हैं या रिसर्च आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल तो अखबारों में ठीक। पब्लिश होते हैं ना, डॉन में, न्यूज़ में, जंग में, ठीक है, वो एज सच बाज़-औक़ात उनको हम रिसर्च पेपर्स नहीं कहते। दे आर जनरली किसी की वो किसी एक बंदे की पर्सनल व्यूज़ होते हैं। जो ठीक सर। फॉर्मल रिसर्च पेपर्स होते हैं वो किसी एक बंदे के पर्सनल व्यूज नहीं होते, बल्कि उनको रिव्यू किया जाता है, रिव्यू करके उनके अंदर गलतियां निकाली जाती हैं और फिर अकॉर्डिंगली करेक्शन के बाद वो चीज़ छपती है। लेकिन लिखने से पहले वो जो बंदा है वो पुराने सॉल्यूशंस को पढ़ता है, पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग पे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और फिर वो पूरी डिस्क्रिप्शन जो है एक रिटन फॉर्म में लिखता है। इसको हम रिसर्च पेपर कहते हैं। और रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश होता है
इसके लिए जरूरी नहीं है कि उस बंदे ने कोई थीसिस किया हो। रिसर्च पेपर आर पब्लिश्ड विदाउट थीसिस एज वेल। बट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो थीसिस जब लिखते हैं तो थीसिस में वो किसी मसले को हल कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके उसको हल कर रहे ठीक होते सर। हैं। तो जब वो हल करते हैं तो थीसिस भी लिखते हैं और थीसिस के अंदर से रिसर्च पेपर्स एक्सट्रैक्ट करके उनको भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा अपना सवाल रिपीट कीजिए कि आपने क्या कहा था कि रिसर्च में और आर्टिकल में क्या फर्क होता है, ये कहना चाह रहे थे आप? यही सर, ये कहना बस हो गया सर, क्लियर हो गया, आपने क्लियर कर दिया सर। तो रिसर्च की जाती है पहले, रिसर्च को फिर एक अप्रोप्रिएट तरीके से लिखा जाता है जो कि रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में पब्लिश हो जाता है, जिसमें बाद में राइट आने सर। वाले उसको पढ़ के उससे कुछ अकल हासिल करते हैं कि यार ये पहले लोगों ने ऐसे हल किया था। ठीक सर, राइट। सही है, अभी इसमें जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं वो क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक सर। ओके जी, अभी जो लोग रह गए मैं उनसे एक दफा कुछ क्वेश्चंस कर लूँगा कि मुनीब मुनीब साहब से हो गया सवाल? जी जी सर। आपसे हो गया, अच्छा आप इनफैक्ट ठीक है जी। साइमा महमूद मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बताइए। सर आई हैव जॉइंड जस्ट 2 मिनट्स अगो। कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे सर? अच्छा, एक तो टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। सवाल मैंने ये किया था कि कोई आपने लेक्चर्स देख लिया पिछला वाला? जी सर, पिछले वाले 4 लेक्चर्स शेयर हुए थे, मैंने चारों जो है ना सुन लिए सर। सुन लिए? ओके, कोई सवाल उसके अंदर से? नहीं सर, मुझे बड़े अच्छे लगे। आप मुझे ऐसे टीचर लगे हैं जो बच्चों को अच्छी तरह से परसू कर रहे हैं फॉर द रिसर्च, और मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि मेरा गोल है सर पीएचडी में एडमिशन लेना, तो मैं चाहती हूँ तब तक मैं 3-4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दूं। तो आपकी क्लास मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले वाले दोनों सेमेस्टर्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे लिए हैं, लेकिन अभी ये डिस्टेंस पे उठाया क्योंकि एक तो ये शॉर्ट सेमेस्टर है, फिर ऊपर से ऑफिस में मेरे कमिटमेंट्स कुछ इस तरह के चल रहे हैं, और मेरे बच्चे भी हैं सर 3 छोटे छोटे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस दफा ज्वाइन नहीं कर सकी आप लोगों को लाइव क्लास में, ओके, बट आई विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू सर। तो ठीक है इंशाल्लाह। एवरीथिंग वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलें, बस रिक्वेस्ट ये है कि आप रेगुलर जो है वो लेक्चर सारे देखते रहे, तो होपफुली इससे जी सर। आपको अफाका होगा। जी सर। ठीक है, चलिए, अगर और इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अभी एक दफ़ा दोबारा लबे लुबाब दे दूं कि एक वीक के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, और मेरी रिक्वेस्ट दोबारा ठीक है सबसे, सभी के लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पड़े हुए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में सर। जाके आप उनको देखें सारे लेक्चर्स को और उनकी समरी बनाएं, और वो मुझे, अगर अब तक आपने शेयर नहीं की तो एस अर्लियर पॉसिबल वे में मुझे पहले वीक की समरी शेयर करें, और आज के वीक के भी लेक्चर्स देखिएगा, इसके भी अगले वीक से पहले समरी शेयर कीजिएगा। साथ साथ मैं असाइनमेंट कोई ना कोई देता हूँ, हम क्लास के अंदर भी काम करेंगे और कुछ आउट ऑफ क्लास भी आपको टास्किंग दी जाएगी, तो वो आपने करके बिफोर प्रीवियस क्लास मुझसे शेयर करनी है। अच्छा जी, अभी जो हमने लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट्स दी थी, मैंने उसमें आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि आप कुछ चीज़ें सर्च करें। लाइक मैंने कहा था कि देखें कि कौन कौन से रिलायबल पब्लिशर हैं जहाँ पे चीज़ें, जो चीज़ें पब्लिश करते हैं, मैंने कहा था इसको फिगर आउट करें। फिर मैंने कहा था कि रिसर्च पेपर्स की टाइप्स को सोचें, देखें। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि फॉर्मल रिसर्च हम सब ने करनी है, तो फॉर्मल रिसर्च के अंदर एक तरीका कार फॉलो होता है, वो तरीका कार जो है आपने फॉलो करते हुए रिसर्च करनी है। तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रिसर्च पेपर्स होते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर्स जो है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है बाय द रिसर्चर्स विच हैज बीन रिव्यूड बाय एरिया एक्सपर्ट्स। आफ्टर दैट, आफ्टर इंश्योरिंग दैट द कंटेंट इज करेक्ट, इट इज पब्लिश्ड। सो रिसर्च पेपर से हमने शुरू करना है और उसी के इर्द गिर्द अपनी कहानी बुननी है, और अकॉर्डिंगली फिर अपना काम करके रिसर्च पेपर की तरह ही लिखना है। जो हमारे थीसिस होते हैं वो रिसर्च पेपर की एक्सपेंशंस होते हैं। आप लिंक करेंगे अगर, तो एक रिसर्च पेपर में और एक थीसिस में कंटेंट सेम होता है या सिमिलर होता है। ठीक है, लेट मी शो अ स्लाइड वेयर यू विल गेट इट इन मोर।
जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को स्लाइड नजर आ रही है? नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं लेट मी शेयर। नो सर नहीं है। अभी आएगी आप। जी सर, अब नजर आ रही है। जी सर आइए। अच्छा देखिए, वी कॉल इट द रिसर्च प्रोसेस। एज एन MS स्टूडेंट we all have to follow a specific process for doing our research, right? So अगर आपने प्रोसेस में रिसर्च करनी है तो उसका तरीकाकार क्या है कि वो कुछ ऐसा तरीका होगा जो यहाँ पे मैं अब डिस्प्ले कर रहा हूँ, दिस वन। ये चैप्टर्स हैं एक थीसिस के, ठीक है जी। किस चीज के चैप्टर्स हैं? ओके थीसिस के चैप्टर हैं सर। ओके, अब आप देखें इसके अंदर तो यही सेम चीज आपको सेक्शंस के साथ नजर आएंगे रिसर्च पेपर्स में। मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये भी की थी कि कुछ रिसर्च पेपर्स आप डाउनलोड करें, पढ़ें, देखें कि उनमें क्या होता है। तो रिसर्च पेपर में आपको नजर ये आएगा जी कि उसका एक टाइटल होगा, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर उसमें कुछ इंट्रोडक्शन की दी गई होगी, फिर कुछ बैकग्राउंड लिटरेचर रिव्यू होगा, फिर उसने अपना मेथड डिस्कस किया होगा, फिर उसके रिजल्ट्स पे बात की होगी और फिर कंक्लूजन दिए होंगे, फिर रेफरेंसेस होंगे। आप में से किस किस ने रिसर्च पेपर कोई खोल के देखा है? सर मैंने खोल के देखा है और अपना सर देखा है। टॉपिक। अच्छा, अच्छी बात है अगर आपने देखा